Hello students, in this video I am going to solve the question number 5 of the chapter quadratic equations, exercises 4.3. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and an area 400 meter square? If so, find its length and breadth. First of all, you will consider the length of the rectangular park be x. Let the length of rectangular park be x and breadth of rectangular park be y. What is the parameter of the rectangular park? Parameter is 80 meter. And what is the area of the rectangular park? 400 meter square. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस पी. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे लेंथ प्लस विड्थ की. लेंथ प्लस विड्थ क्या है आपके पास? एक्स प्लस वाई. एक्स आपने लेट किया है लेंथ को, विड्थ को आपने वाई लेट किया है. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 80 मीटर्स. नाउ you will take 2 to the denominator end. 2 आपका कहाँ हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस वाई के साथ, और 2 को आप कहाँ ले गए? डिनोमिनेटर एंड में. तो ये बन जाएगा 80/2. 2 से आप 40 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से आप 80 को कैंसिल आउट करेंगे, 40 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 40. x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. And you will derive x from here. So x will be equal to how much? 40 minus y. This is the value of x which has been derived from the equation number 1. And the area of the rectangle is given to you as 400 meter square. What is the area of the rectangle? Area of the rectangle is length into width. Area of the rectangle is what? Length into breadth. So area is 400 meter square. It will be equal to x multiplied by y. Now you will put the value of x in the equation number 2. This is your equation number 2. Area क्या होता है आपका? Length multiplied by breadth. Length is x, width is y. So area is given to you as 400 meter square. 400 is equal to x multiplied by y is your second equation. Now you will put the value of x. Put the value of x in equation number 2. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस वाई. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, इक्वल टू 400 आ जाएगा आपके पास. नाउ यू विल ओपन द ब्रैकेट्स. 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400. अब आप 40y माइनस वाई स्क्वायर को कहाँ पे लेके जाओगे? राइट हैंड साइड पे. तो ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब आपके पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है? वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 आपके पास किस फॉर्म में आ गया है? आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. और आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास? ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0. This is the ideal quadratic equation in which a is equal to 1. a की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर? इस इक्वेशन में 1 है. b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास इस इक्वेशन में? -40 है. और c की वैल्यू क्या है आपके पास? +400 है. This is the value of a, b and c. To find out that this equation is possible to make a rectangular park or not, you have to first of all find that is it possible to design a rectangular park. तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन जो आपके पास गिवन है y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है इस इक्वेशन के थ्रू कि आप एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं या नहीं? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू विल फाइंड आउट थ्रू द डिटर्मिनेंट.
तो डेटर्मिनेंट से आप फाइंड आउट करेंगे कि द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सुटेबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क और नॉट. What is determinant? Determinant is b square minus 4ac equal to 0. What is the value of b? Value of b is minus 40 whole square. Minus 4 multiply by a. A is your 1. What is the value of c? c is 400 equal to 0. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले आप 40 का स्क्वायर करेंगे. 4 4 16. सो इट विल बी 1600. प्लस में आ जाएगा 1600 माइनस 4 4 16 and double 0. 1600 minus 1600 will be equal to 0. So that means the value of determinant, which is 0, is equal to 0. So the above quadratic equation is having real roots and they are equal. Roots are real and equal. So by this equation you can say that it is possible. Why it is possible? Because the roots are real and roots are also equal. So it is possible to design a rectangular park. It is possible to design a rectangular park. अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे? अब आप फाइंड आउट करेंगे the value of length and width. लेंथ और विड्थ की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? विद द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आपको पता है. आपके पास डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी. व्हाट इज डेटर्मिनेंट वैल्यू? डेटर्मिनेंट वैल्यू इज 0. ये आपने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी. देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 0 आई है. तो आप इसको अब दोबारा सॉल्व नहीं करोगे. यहाँ पर यू विल ऑलरेडी प्लेस द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी एज 0. सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू क्या है? माइनस 40. सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय हाउ मच? 2 मल्टीप्लाई बाय इज 1. तो आपके पास दो फॉर्म्स में इक्वेशन आएगी, एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में. सो x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल बिकम प्लस 40 डिवाइड बाय 2. अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी 0, सो यू विल हैव ओनली वन रूट. रूट की आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 20. सो x विल बी इक्वल टू 20. दैट मीन्स द रूट्स आर इक्वल. रूट्स क्या है आपके? इक्वल है एंड दे आर रियल. x की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ गई है तो आपने x को क्या लेट किया था? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. सो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी. सिमिलरली आपने विड्थ को क्या लेट किया था? y. विड्थ को आपने क्या लेट किया था? ब्रेड्थ को y लेट किया था. और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? y की वैल्यू निकालोगे आप इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू, जिसमें आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल थी? x इज इक्वल टू 40 माइनस y. 40 माइनस y. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? y विल बी इक्वल टू हाउ मच? y किसके इक्वल आ जाएगा? 40 माइनस x के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 40 माइनस 20. y विल बी इक्वल टू हाउ मच? 20 सेंटीमीटर. आगे ना दोनों रूट्स इक्वल. x की वैल्यू क्या है आपके पास? 20 और y की वैल्यू क्या आ गई? 20. दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो with the help of determinant we can find out the length and width value. determinant में आपने क्या पता लगा लिया था कि आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं? रियल है और दोनों इक्वल हैं. तो आपके पास रूट्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? x और y की वैल्यू 20 and 20. दैट मीन्स the roots they are equal and they are real, and roots they are equal to 20 centimeter. This is your answer of the last question, which is the 5th question of the exercise
4.3। आई होप आपको तीनों की तीनों एक्सरसाइजेस क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment box, students. I will clarify it. Thank you.